घर वालों को पता ही नहीं कहा। तो मैं ड्रामा खत्म करके घर आया, मैं कहा अम्मी वो किधर है फरवा। वो सारे रोन लगे, मैं की होया, कहते इससे तेन लब लब के थक गए, फौत हो गई। कितनी थी, क्या क्या एज थी? वो तकरीबन है जिड्डी फजर जिड्डी सी, 6-7 साल दी। कुकिंग तो बहुत अच्छी करते हैं वो। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, उठो रोटी खा लो। मैं तुम्हें सही बताऊं ना, मेरा असल नाम घर वालों ने पता क्या रखा? मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा आईडी कार्ड तो पुराने जमाने में ऐसे ही नाम होते थे। हाँ, जैसे होता ना कि बेटा हुआ तो कहते अल्लाह ने साढ़े घर बूटा लाता। बूटा वाले पेशे से ताल्लुक होता है, जैसे कॉमेडियंस हैं, ये लोग मौत से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। मतलब अक्सर औकात मुझे लोग कहते हैं कि इन्हें ना कोई जब बिल्कुल ही किल करना ही हो ना इनकी कॉमेडी, तो कोई मरने बनाने वाली बात कर देना, ये वहीं पे किल हो जाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि इन ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗੀ, 1 ਆਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਫੜਾਇਆ, ਬੈਗ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਆ ਢਾਬਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। फिर उनके साथ हमने पेल किए, हड़प्पा, साहिवाल, नाई वाला बंगला, गुजरा शाह, मकीम, बसीरपुर, ये सारे शहर मैंने फतह किए। टीपू सुल्तान। फिर एक ट्रेजेडी और हुई है मेरे साथ। वो क्या? मेरी एक बेटी थी, फजर जैसी सी खूबसूरत बड़ी, उसका नाम था फरवा। फर्स्ट वाइफ से? हाँ हाँ हाँ। वो मैं ड्रामा कर रहा था शोरकोट। शोरकोट से फिर कभी हड़प्पा चले गए, कभी इधर, मतलब काफी शहर फिरते। वो घर वालों को पता ही नहीं कहा। तो मैं ड्रामा खत्म करके घर आया, मैं कहा अम्मी वो किधर है फरवा। वो सारे रोन लगे, मैं की होया, कहते इससे तेन लब लब के थक गए, फौत हो गई। कितनी थी, क्या क्या एज थी? वो तकरीबन है जिड्डी फजर जिड्डी सी, 6-7 साल दी। ओए होए। मैं कहा ये की होया, क्योंकि कोई राब्ता नहीं हो पाता था, तो पता ही नहीं कितने ड्रामा कर रहे हैं। वो फिर वो बहरहाल खबर अल्लाह ताला दे ही दिंदा। वो फिर मैं ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਹੈ ਫਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਅੱਗੇ। लेकिन सलीम साहब, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ठीक है हमारा काम है, लेकिन स्टिल उसको, उस फीलिंग को ओवरकम करना है। क्योंकि मुझे याद है हम सेट पे ही थे और आपको इसी तरह एक कॉल आई थी, होशियारियां के सेट पर ही, कि डेथ हो गई है फैमिली में। तो आप जब अगले दिन आए हैं तो यू आर कम्प्लीटली फाइन, और हम लोग
थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहे थे, बट यू वर कंप्लीटली फाइन। आपने हमें बिल्कुल शो नहीं किया कि आप किसी ट्रेजेडी से या किसी दुख से गुजर रहे हैं। हाउ डू यू डू दैट? कि कैसे करते हैं आप, कैसे ओवरकम कैसे कर लेते हैं उस फीलिंग को? नहीं, हर इंसान मतलब फीलिंग तो होती है, अंदर अंदर होती है, लेकिन हमारी कमिटमेंट अपने आप से नहीं है, लोगों से है। तो लोगों को हमने काम देना ही देना, ज़ाहिर है जो हमारा फन है। तो लोगों को ये तो नहीं पता होता कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है। अब तो पेट्रोल भी डलवाने जाए तो वहां भी हैप्पी होते लोग, भाजी इन्हें कुछ झुकता तो करो, वो करो भाई बंदा लड़के गया हुए। वो समझते कि ये 24 ये ऐसे ही आवर रहते हैं। ऐसे ही जॉली लोग हैं, ये हंसते हैं हंसाते हैं। तो वो फिल्म नहीं बनी थी मेरा नाम जोकर, जी। बिल्कुल सही। तो बस फिर एक ड्रामा मैं करने गया मुल्तान, एक ड्रामा, वहां जिंदगी के 5 साल गुजर गए मेरे, वहां आगा मेरा दोस्त बना। एक ड्रामा ये जो आप करने गए, ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 98। 98। और उस वक्त तक सलीम अल बेला कोई नाम बन गया था या नहीं? नहीं, लाहौर में नहीं था, लेकिन साइडों पे नाम बन गया था, जैसे पाक पतन, आरफ वाला, मेलसी, करोड़ पक्का, इधर मेरा नाम बन गया था। बहुत बड़े इलाके हैं। नहीं, वहाँ 7-7 दिन के ड्रामे होते थे ना, हाँ। परमिशन लेके, तो वहाँ। तो मुल्तान कौन लेकर गया? मुल्तान मुझे तारक टैडी ने कास्ट करवाया था। मुझे अभी कल परसों एक बात पता लगी थी कि आगा साहब को नरगिस जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था लाहौर में। लाहौर में। लाहौर में। आपको किसने कराया था? मुझे सुहेल अहमद साहब। अच्छा। असल में तारक टैडी जब उकाड़ा में हमारा घर होता था ना, तो हम इकट्ठे ही ड्रामे आउटडोर करते थे। मेरा बहुत दोस्त था वो मेरे घर में ही आके सो जाता था, तो वहीं हम दोनों ही आउटडोर चले जाते थे। इनका घर फैसलाबाद था, तो जब फैसलाबाद जाते थे मैं इनके घर ही रहता था। तो ये मेरा बड़ा अच्छा, मतलब जितने हमारे समझे जो आज के स्टार है ना, हाँ। सखावत नाज, सलीम अल बेला, नासिर चन्योटी, आगा माजिद, जफरी खान, ये वो स्ट्रगल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो आज वो सारे ही माशाल्लाह स्टार है। कैसर पिया तो कल की बात है, मेरा शागिर्द है, गंडा हाँ, हाँ। अच्छा, ये अलबेला नाम का क्या चक्कर है? आपका असल नाम क्या है, ये भी बताएं। अच्छा, मैं तुम्हें सही बताऊं ना, मेरा असल नाम घर वालों ने पता क्या रखा? मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा? आईडी कार्ड तो पुराने जमाने में वैसे ऐसे ही नाम होते थे। हाँ। जैसे होता ना कि बेटा हुआ तो कहते अल्लाह ने साढ़े घर बूटा लाता, बूटा। तो ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ origignal ਨਾਂ ਆ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਮ ਅਲ ਬੇਲਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ। नाम रख दिया। तो मोहम्मद बूटा ही रख देता, ऐसे ही नाम से। थे जो मुंह में लफ्ज आया है वो ही रख दिया जो नाम। चीज सामने आई वो नाम। हाँ यार, मेहनत तो करो बच्चे के लिए, कोई नाम तो सोच समझ नहीं, के मैंने रखो। फिर वो जब ये आईडी कार्ड शुरू हुए ना कंप्यूटराइज, हाँ, तो उससे पहले मैं अलबेला साहब का शागिर्द हो गया था। हाँ, तो कह रहे यार वो दूसरे कार्ड बन रहे हैं उनके, वो बनवाओ तुसी। मैं फॉर्म भर के देता, मैं कही सलीम अल बेला हाँ। वल दफ्तर रशीद। सलीम आपने खुद ही दिया अपने आप मैं को खुद ही- नाम? खुद ही। अच्छा, शहजादा सलीम वैसे से वो देख रहे हो ना, हरून साहब की बात है कि कोई इंसान अपने आप को चेंज करना चाहे तो कर सकता है, कर सकते। कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं सलीम अल बेला, उन्होंने मेरा कार्ड बनाता, अगो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। चलो अल्लाह का शुक्र है कि आपके डॉक्यूमेंट में मोहम्मद बूटा नहीं लिखा हुआ। मैनू अगले ने जहाज चला देना। लेकिन वो सरप्राइज जरूर हो जाते कि नहीं, अब देखे ना, मेरा जो जैनवन नाम है ना सलीम अल बेला, हाँ। ये जैनवन आर्टिस्टों के नाम नहीं होते। आप देखे ना, आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है। जैसे हनी अल बेला है, हाँ जी, उनका असल नाम और है, हाँ जी। असल क्या है है। उनका असल नाम? हसन रजा के हुसनैन। अच्छा, तो ऐसे। हनी उन्होंने भी हनी वो अलबेला साहब उनको हाँ, प्यार से कहते हनी। थे हनी। अच्छा, तो अलबेला साहब का नाम भी माशाल्लाह वो और था। अच्छा। ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾਮ। ਸੋ origignal ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਹੀ ਟੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। तो मुझे ये बताएं कि जरा आप थोड़ा सा आपसे दूसरों के बारे में पूछूंगी। अगर आगा माजिद कॉमेडियन ना होते तो क्या होते हैं? दर्जी सी
वही कर रहे होते हैं। ਆਹੋ ਦਾਲ ਦਰਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਟੇਪ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਾਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। तो आपको लगता है अगर वो दर्जी रहते तो वो एक बड़े डिजाइनर बन सकते थे? बन सकते थे, क्योंकि वो शार्प थे ना, अल्लाह ताला ने उनको जो एक पिक सेंस बड़ी अच्छी दी थी आगे बढ़ने की आगा सलाह माजी ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੇਲਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। थी, उसी काम में आगे बढ़ सकते थे। और अगर हनी अलवेला कॉमेडियन ना होते तो वो क्या होते? वो तो बाई बर्थ हैं, उन्हें घर भी जुगता करी जानी और कुछ ना होते, वो यही होते। नहीं, वो फनकार का जो बेटा होता है ना, वो अक्सर कुछ नहीं करते, वो कहते हमारा बाप कमा रहा है तो हम बस। अच्छा, अगर सरदार कमाल कॉमेडियन ना होता तो क्या होता? सरदार साहब ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। लेकिन सरदार कमाल साहब बहुत नाइस आदमी, हाँ। बहुत प्यारे आदमी। इफ्तिखार ठाकुर क्या होते हैं? ਆਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, तो ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ नहीं। 22 व्हीलर ट्राला चलाता था वहाँ ठाकुर साहब। लेकिन मेरी बात सुने, उन्होंने क्यों छोड़ा? उसमें बड़े पैसे हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, असल उसके अंदर एक फनकार भी तो था ना, ये भी बात ठीक तो है। इस वक्त तो माशाल्लाह वो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब अगर आर्टिस्ट ना होते ना, वो भी कोई SP DSP रैंक ते काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वालिद साहब भी DSP सन, और उनकी वैसे शक्ल भी शक्ल थोड़ी भी सी ऐसी है, रोबदार माशाल्लाह, तो सलीम बड़े साहब, अच्छी पर्सनैलिटी सेल साहब। मुझे बताएं, कभी आपने सोचा है कि अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब सब कुछ है, तो मैं अब मुल्क से बाहर चला जाऊं, रेट बढ़ा लूं कि शोज पे इतने पैसे दोगे तो आऊंगा करने के लिए, या पाकिस्तान में ही बस रहना है? नहीं नहीं, पाकिस्तान में ही रहना, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें पहचान दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं अपने बच्चों को माशाल्लाह सेटल कर दूं। चलो उनकी आगे जिंदगी है, लाइफ है, तो हमारी जिंदगी तो तकरीबन गुजर ही गई है, अभी भी गुजर रही है, तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा होना चाहिए। तो जब आप मुल्तान गए ड्रामा करने के लिए, आपने 5 साल गुजारे, ये कैसे हुआ? नहीं, ड्रामा बहुत चल पड़ा, पहला ड्रामा, और फिर जी आपको जी, रुकना पड़ा वहाँ? पहला मैंने ड्रामा किया, उस वक्त वहाँ के लोग बड़े हिट थे, तारक टैडी बड़ा हिट था, मैंने इसको ही पकड़ा जाके, मैं कहा तू तो इधर आना। हाँ। तो मेरा दोस्त भी था, तो लोगों ने बड़ी क्लैपिंग, उन्होंने कहा यार है मुंडा बड़ा वधिया लिया तुसी। वो अभी वो ड्रामा चल रहा था, अगले ड्रामे के एडवांस पैसे मिल गए, एडवांस मिल जाते थे ना उस हाँ वक्त, जी, कि अगला स्पेल तुसी साडे को भाजी ऐ फड़ो पैसे, हाँ जी। वो एग्रीमेंट हो जाता था। तो ऐसे करते करते जिंदगी के 5 साल वहां पे फिर खबरों की जीनत बनते रहे हम, अखबार वहाँ होता था, उस वक्त सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था ना, टीवी भी इतना, चैनल्स भी, हाँ जी, तो अखबार ही होता था, यही मीडिया था, इसमें खबरें जो दोपहर को छपता है, न्यू खबरें, तो काफी अखबार थे, एक्सप्रेस, नया दौर, पता नहीं कितने अखबार थे, वहां पे पूरा पूरा पेज छपा है हमारा। 2 मरतबा उधर मेरी ताजपोशी भी हुई है। फिर एक ड्रामा हमने वहां पे किया है शहनशाह, उसमें नासिर जिनोटी, मैं, आगा माजिद, तो वो तो फिर ड्रामा, मुल्तान में आप लोग इकट्ठे? वो ड्रामा 1 साल चला है वहां पे। ओह, लाहौर के अलावा ड्रामा 7 दिन चलता था हर शहर में, तो वो ऐसा ड्रामा, जवार बलोच साहब डायरेक्टर थे, तो 1 साल चला ड्रामा। तो वहाँ आप लोग कहाँ रहते थे? सारे इकट्ठे रहते थे, क्योंकि घर तो नहीं, सबके जब अलग अलग। हम प्रोड्यूसर बुलाता है ना वहाँ होटल में या गेस्ट हाउस उन्होंने लिए होते हैं, वहाँ पे लाहौर से जो फनकार जाता है ना, जो लोकल है वो तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो आगा साहब से दोस्ती कैसे हुई? क्योंकि उनका मिजाज बड़ा डिफरेंट है और आपका मिजाज बड़ा डिफरेंट है। नहीं, मेरा दोस्त ही है वो, मतलब कैसे बने वैसे दोस्त? थोड़ा कौड़ा बंदा है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, दिल का अच्छा है, मतलब ढल जाता है फौरी। वो वहाँ पे मतलब मुझसे पहले वो पर काम शुरू करते शुरू में ना वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं। हैं। वो आबिद खान साहब बनते हैं ना, आबिद खान से मतलब उनकी इंस्पिरेशन हम आबिद खान साहब है। हाँ, तो आबिद खान साहब भी हमारे बहुत प्यारे फनकार हुए हैं पाकिस्तान के, जो गाते भी थे, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता था,
हाँ और एक्टर तो कमाल थे, पढ़े लिखे थे वो। हाँ और शाहिद खान के भाई है। हाँ। अल्लाह ताला ने आप लोगों की जोड़ी ऐसी हिट करा दी हाँ हाँ। कि फिर जहां आप जाते हैं तो लोगों को होता है कि आगा माजिद भी जरूर होगा, वो जाते हैं तो लोगों को होता है कि सलीम अल बेला भी साथ जरूर होगा। नहीं, आगा साहब के वालिद शौकत भाई बहुत हम उनसे मोहब्बत करते थे। जब हमने ਆਗਾ ਮਾਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਗਾ ਮਾਜੀ, ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲੀਮ ਅਲ ਬਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸਟਾਰ नहीं बने, कई साल ਇਹਨਾਂ स्ट्रगल की है। मुल्तान गए ना तो आगा साहब को उन्होंने घर से निकाल दिया था। क्यों? उनके पास तो सोने के लिए जगह ही नहीं थी। ओ वो कहता फनकार बनना तो निकल जा मेरे घरों। ओ तो फिर इन्होंने हमारे पास बैठना उठना शुरू कर दिया। हाँ तो हम दोस्त बन गए, नासिर चिनोटी, मैं और आगा माजिद साहब। तो फिर हमने कहा यार रहना तो इधर ही है, तो किराए होटल में कितना क्यों देते। फिर गुलगश्त कॉलोनी है, वहां पे हमने एक घर ले लिया 1500 रुपया महीने पे। 500 आगा साहब देते, 500 मैं, 500 चिनोटी। सब मिला के, उस वक्त इतना ही किराया होता जाहिर था। है। हाँ तो आगा साहब खाना बहुत अच्छा बनाते थे, हाँ कुकिंग तो बहुत अच्छी करते हैं वो। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, उठो रोटी खा लो। उस वक्त इसकी खुराक बहुत थी, अब गुस्सा करता है ना। हाँ मैं देखदा इन्हें प्राची सालन पा लेना। ये उस वक्त का ही खाया हुआ है सारा जो अब ये वही नजर हशर आ करवा जाता है। बैठे हैं। हाँ अब कहते हैं मैं नहीं खाता, और वाकई इतना नहीं खाते, लेकिन जाहिर है अपना बेड़ा गर्क तो पहले ही कर बैठे थे। इनको पता था कि गोश्त अच्छा कहाँ से मिलता है, सब्जी अच्छी कहाँ से मिलती है। कल मैंने जाना है उनके घर, तो अच्छा। मैं यही सोच रही थी कि अगर छोटा गोश्त ना हुआ ना तो फिर हम इन्हें बहुत जलील करके आएंगे। होना बड़ा ही है, इन्हें छोटा छोटा करके पकाना ही है। कल पता लगेगा और फिर मैं बताऊंगी मंडे को सबको। तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिंदगी का बड़ा अच्छा हमारा सफर गुजर रहा है। तो नासिर चिनोटी भी बहुत नाइस आदमी है, अब जरा बहुत बड़ा स्टार बन गया है माशाल्लाह। हाँ अल्लाह जी। उसको और बड़ा स्टार बनाए। हमारी फैमिली मतलब एक है, इनके घर या नासिर के घर या मेरे घर फैमिली फ्रेंड्स ही और बन गए ना family सारे। friends। अच्छा फिर लाहौर आना कैसे हुआ? लाहौर मतलब पहली दफा कौन फिर लेकर आया? सुहेल साहब मुल्तान ड्रामा करने गए थे, सुहेल अहमद साहब। हाँ जी। तो इनकी ताजपोशी थी, अवार्ड शो था सुहेल अहमद की, आजाज में वहां पे रखा था ना। तो वहाँ मैंने गाना गाया, और वैसे भी सुहेल साहब के पास ना मेरी बातें पहुंचती थी, जैसे ना कि सुहेल साहब वो मुंडे ने यह गल की। तो वहाँ मुलाकात हुई तो सुहेल साहब कहते तुसी लाहौर आ जाओ ना फिर। हाँ तो फिर मैं लाहौर आया तो सुहेल साहब ने मुझे क्राउन थिएटर पे मैंने ड्रामा किया बड़ी कास्ट के साथ। नौकर साहब, वहाँ मस्ताना साहब थे, सुहेल अहमद साहब, सखावत भी था उसमें, मतलब बिग कास्ट हाँ थी, जी। सखी सरवर साहब की। तो उन्होंने मुझे रोल दिया और मैंने अच्छा किया। फिर एक और ड्रामा किया, तो फिर मेरा ना यहाँ इतना दिल नहीं लगा, मैं फिर भाग गया वापस। लाहौर में दिल नहीं लगा? हाँ। लाहौर तो हब था, और मतलब बाकी शहरों में उस टाइम पे लाहौर की बड़ी गुड्डी थी। हाँ। फिर क्यों? बस वो पता नहीं एक चक्कर चल रहा था, एक मेरा ना किसी के साथ। अफेयर चल रहा हाँ, था? हाँ। अच्छा, वो जहाँ पे फिर वो थी वहां पर आपका दिल लगा हाँ, हुआ हाँ, था कि मैं उधर ही रहूं। अच्छा तो मैं फिर भाग नाइस। और फिर उनके साथ मेरा ना बिल्कुल हाँ कट ऑफ हो गया, सेपरेट की कहते सेपरेशन, वो हो गई, ब्रेकअप। अब ब्रेकअप हो गया। हाँ तो फिर मैं लाहौर खुद ही आ गया। हाँ। तो फिर यहाँ अली रजा साहब पड्डम नईद खान के बेटे, उनके साथ बड़ा काम किया। फिर ऐसे ही फिर मैं कहीं नहीं गया, फिर यही काम करते रहे। और फिर थिएटर में एंट्री? थिएटर बेहतरीन, फिर वो टीवी मिल गया। टीवी किस सन में मिला था? टीवी मुझे आज हो गए तकरीबन 11-12 साल तो हो गए काम करते, हाँ। 11 साल। और पहला शो वही था आफ्ताब इकबाल हाँ जी, साहब हाँ का, जी, खबरें और खबरनाक। खबरनाक। और उसमें आगा साहब पहले थे या आप थे पहले? नहीं, मैं था, आगा साहब को तो मैं लेके आया। अच्छा 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 आगा अच्छा। साहब तो मुल्तान थे, तो अमानुल्लाह साहब हज करने के लिए गए थे। तो आफ्ताब साहब ने कहा कि कोई लड़का यार को अच्छा सा, कि चलो अमान साहब की जगह पे। मैं कहा जी एक आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा है, एक्शन रिएक्शन उनका बहुत अच्छा है, उनका चेहरा बड़ा है ना, तो आठा उनका बनता है एक्सप्रेशन उनका नजर आता है। हाँ। वो कहते बुलाओ उन्होंने, फिर मैं आगा साहब ने बुलाया।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। फिर मैं बुला लिया थे आज, माशाल्लाह देख लो। मैं छोटी थी ना सलीम साहब, तो थिएटर से मैंने ना, छोटी भी थी आप? मैं अभी भी छोटी हूँ, अच्छा। लेकिन जब मैं बिल्कुल ही छोटी थी हाँ, हाँ। तो मैंने थिएटर के 2 नाम बहुत ज्यादा सुने हैं, एक अमानुल्लाह साहब का हाँ जी। और एक बब्बू राणा साहब का। बब्बू बराल का। बब्बू बराल साहब का, ओ बब्बू राणा तो ये अब वाले ना, बब्बू बराल उनकी डेथ हो गई जिनकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बब्बू बराल साहब को बड़ा सीख, फिर वो गाने भी गाते थे। टेंट थी, वो हाँ। एक्शन रिएक्शन। मुझे वो ना मतलब बड़े एक मिस्टीरियस से कैरेक्टर लगते थे, लेकिन मेरी क्योंकि उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि वो कैसे थे, और उनका एक्सपीरियंस अगर आपके साथ कोई गुजरा है तो कोई वाकया उनका प्लीज शेयर। नहीं, मेरा वक्त गुजरा है, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की मेरे साथ। वो जो फनकार होते थे ना, कि बेहतरीन फनकार, वो बड़ा फनकार, उनकी आंखों में या उनका, जिसे कहते हैं कि नाई चौलों का एक दाना ही चेक करता नहीं, देख पक गई भाई ये हाँ सही जी। है चौल। हाँ जी। तो ऐसे ही जो सीनियर लोग होते हैं ना, वो एक बात से ही समझ जाते हैं कि ये बंदा कल को कुछ ना कुछ बनेगा। हाँ, तो उनके साथ मेरी कंपनी रही, मैंने काफी ड्रामे भी कोई किए। उनका वाकया बताएं। बब्बू साहब जो थे ना, वो एक मुकम्मल पैकेज थे, जो जिसे हम कहते हैं ना 5 पटिया फनकार। हाँ, तो वो बब्बू बराल साहब गाना तो कितना अच्छा गाते थे, हाँ। राइटर भी थे। जैसे वो ड्रामा आपने सुना होगा शर्तिया मिठे, हाँ जी, वो बब्बू साहब ने लिखा था, हाँ। जिसमें अंधे बने हुए थे। फिर बहुत वो हिट ड्रामा। प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की अपनी। फिर वो एक्टर बहुत अच्छे थे, राइटर भी थे। मतलब जो सलाहियत एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए ना, वो बब्बू साहब में थी। बेसिकल वो थे गुजरावाले के। गुजरावाला के एक इलाका है राहवाली, वहाँ वहाँ गखड़ गखड़। आप गए कभी गुजरावाला? गुजरावाला तो गई हूँ, गखड़ नहीं गई। गुजरावाला से आगे है, जब वजीराबाद जाए ना, पहले आता है राहवाली, हाँ जी, फिर आगे आता है गखड़। हाँ जी। गखड़ की दरिया बढ़िया मशहूर। गखड़ मंडी का सुना है मैंने। हाँ, वो ही समझ ले। हाँ। उथों ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦਰੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ? हाँ जी, ये दरिया ये जो बिछाते हैं। चार पाई पे। हाँ, वो नहीं दरिया किसी के फौदगी पे होती हैं ज्यादा। वो ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये क्या बात है, मैंने सुना है ये जो लोगों का हंसने हंसाने वाले पेशे से ताल्लुक होता है, जैसे कॉमेडियंस है, ये लोग मौत से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। मतलब अक्सर औकात मुझे लोग कहते हैं कि इन्हें ना कोई जब बिल्कुल ही निकिल करना हो ना इनकी कॉमेडी, तो कोई मरने मराने वाली बात कर देना, ये वहीं पे किल हो जाए। नहीं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी फीलिंग जो है ना आम इंसान से अलग होती है। हाँ, ये जीना चाहते हैं, लोगों को हंसाना चाहते हैं, हाँ। लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं। जो मौत दी ना होता ना, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ? ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। साहब के साथ आपका कैसा वक्त गुजरा? मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना अमानुल्लाह साहब थे। आज तो मेरा शागिर्द आपल बेला साहब के मैं थे। वही बात बताता हूँ ना, अभी मेरी एक ना YouTube चैनल पे वीडियो चल रही है 26 साल पहले की। मैंने देखी है यार। गवर्नमेंट शो, वैसे मैं सलीम पता ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ। मैं जो हारून साहब को कहती रहती हूँ कि डॉक्टर शौकत, आप भी किसी डॉक्टर शौकत के पास गए हैं, वो वीडियो देख के मुझे अंदाजा हुआ है। यार इतनी ग्रूमिंग कैसे हो गई है ये इतनी ग्रूमिंग? बस लगे रहे लाइन में ना, क्यू में। तो वो वीडियो देख ले, आपको वहाँ आपको ਸਲੀਮ ਅਲਵਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अमानुल्लाह साहब नजर नजर आएंगे आएंगे, अंदर। हाँ। तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब ही थे, मैंने इनका ही शागिर्द होना था। फिर मैं गया अमानुल्लाह साहब को, जब मिला उस वक्त तो ये बहुत बिजी होते थे। टाइम ही नहीं था हाँ, उनके पास। ऐसे हाँ। बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता था इनको। अल्लाह ताला का इतना करम है। तो वो एंड पर भी ऐसे ही गए हैं दुनिया में, हंसते हंसाते ही। तो मैंने कहा मान साहब मैं उकाड़े तो आया तो मैं तेरा शागिर्द होना, मैं लत्ता भी घुट रहा। कहता पुत्र तू मेरा शागिर्द क्यों होना है? वो अलबेला साहब का शागिर्द हो। मैं कहा जी वो क्यों? वो कहता मेरा शागिर्द, मेरा उस्ताद भी वही है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜੁਗਤ ਕਰਾਂ? हाँ, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, फिर मैं, मेरे दोस्त है एक फील्ड में काम कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਅਲਵੇਲਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਤੇ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वो मुझे लेके गया अलबेला साहब के पास। उन्होंने कहा बेटा मैं नाम तो दे सकता हूँ लेकिन काम नहीं, काम तुमने खुद ही करना है। तो वहां से फिर मेरा नाम सलीम अलबेला। तो काम वाकई उस्ताद तो नहीं दे सकता। अगर ये काम किसी को देना हो तो अमानुल्लाह के 13-14 बच्चे हैं, तो तुसी अमानत का काम कर ही रहे हो। तो ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। बात करते हैं ना कि फनकार बनता है या गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन सलीम साहब चाहे आप में बात हो या ना हो, आपको सीखना फिर भी पड़ता ही है। सीखना पड़ता है, जाहिर है। नहीं अंदर हो तो वो बंदा काम सीखे ना। एक मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, मैं कहा नहीं मैं क्रिकेट ही खेलनी। पर ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं और आप किसी को मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही। जब आप किसी को कहेंगे नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मैं किसी ने नहीं मानना, और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं करने की कोशिश कर रहे, ये मैं किसी की तरफ पॉइंट नहीं करी, मैं जेनेरिक बात कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी को नहीं मानना तो कोई भी तुम्हें क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? सही वो बात। तो अल्लाह ताला जैसे जैसे आपको रिस्पेक्ट दे और झुकते जाए। सलीम साहब थिएटर की बात मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि थिएटर का मेयार बहुत गिर गया हमारे मुल्क में। ठीक है, एक सर्टेन क्लास है जो वो देखना पसंद करती है, देखना चाहती है, बट फिर आप उसको बिल्कुल ही महदूद कर दे। अगर आपने उसकी कैसेट्स या डीवीडीज बेचनी है और लोगों ने फैमिलीज के साथ जाके देखना है, तो फिर थिएटर डिफरेंट होना चाहिए। नहीं मैं लंदन गया हूँ, मैं ये काम करता हूँ ना, तो मैं फिर ये ऐसी चीजें देखता हूँ। लंदन एक है थिएटर सिटी, वहाँ मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर ही ना तकरीबन 40-50 थिएटर है लंदन में, सेंट्रल लंदन। तो वहाँ ड्रामे जो लगे हुए हैं ना इर्जा, एक ड्रामा लगा है 25 साल से, एक ड्रामा ही, एक 20 साल से चल रहा है, एक 40 साल से चल रहा है। तो ड्रामा जो होता है ना, थिएटर जो होता है, उसकी वीडियो नहीं जानी चाहिए, वो तो लाइव है। एग्जैक्टली। वो तो आके देखेंगे तो पता लगेगा वो यार देखो यार की कर रहे हैं। अगर वही चीज आपकी वीडियो पे चलेगी तो वो तो सबके हाथ में चली जाएगी, आपका बिल्कुल वो कौन आएगा फिर आपको देखने। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦਈਏ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਊਗਾ ਹੀ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। इसी तरह मतलब हर तरीके का वहाँ पे थिएटर हो रहा है। तो यहाँ भी जितने थिएटर हैं गवर्नमेंट को चाहिए जी, ठीक है जी ये गानों वाला थिएटर है या डांस होता है या आर्ट ड्रामे होते हैं या मजाहिया ड्रामे होते हैं या वल्गर ड्रामे होते हैं, जो किसी का माइंड होगा देख लेगा, लेकिन पब्लिक ना करें उसको। मैं तो यही कहूंगी कि ये जो डीवीडीज और वीडियोस में की सूरत में आ रहे हैं, ये तो बड़ी यूट्यूब पे आ देर से कह रहे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए फिर। नहीं वीडियो नहीं करना, थिएटर का वीडियो नहीं करना चाहिए। जैसे अब आजकल एक वो होती है ना स्टैंड अप कॉमेडी, अगर आपने सुना है, तो स्टैंड अप कॉमेडी अंडरग्राउंड होती है। बिल्कुल। मतलब बहुत सी ऐसी जगह जो अलाउ नहीं करते कि आप वहां पे आके वीडियो बनाएं, आप सिर्फ टिकट लेंगे, उन्हें सुनेंगे और निकल जाएंगे। ये होना चाहिए। ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਗਾ ਮਾजिद ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ 3rd ਪਾਰਟ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ
ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਹਿਦਾ ਹਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ 1500 500 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਗਾ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹਮ। ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉੱਠੋ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ।